welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video, we will continue our discussion of the latest sample paper of class 11 history for the students of the academic year of 2022 and 23. So before starting our today's video, अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जिसमें हमने इस सैम्पल पेपर के सेक्शन ए एंड बी को डिस्कस किया था, देन फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं. सो नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन. सो आज के इस वीडियो में हमें सेक्शन सी के क्वेश्चंस को डिस्कस करना है. सो प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी इस सैम्पल पेपर के सेक्शन ए के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया था विद देयर सॉल्यूशन. साथ ही हमने सेक्शन बी में जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को भी डिस्कस कर लिया था. सेक्शन सी में आप लोगों से बेसिकली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछा गया है. टोटल आपके पास 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और तीनों ही क्वेश्चंस में आप लोगों को इंटरनल चॉइस मिला है. यानी कि अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है देन उसके बदले में आप दूसरे किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 8 मार्क्स करके है. इसीलिए हर एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिला है. हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को विद आवर क्वेश्चन नंबर 28. So the question is, Mongolia has projected Genghis Khan as an iconic figure for forging a national identity, along with carrying the nation into the future. Justify this statement with suitable arguments. So basically, मंगोलिया कंट्री ने अपने नेशन को फ्यूचर में ले जाने के साथ साथ चंगेज खान को एक आइकॉनिक फिगर यानी कि एक बहुत ही पॉपुलर, एक बहुत ही फेमस फिगर के रूप में प्रोजेक्ट किया है फॉर फॉर्जिंग अ नेशनल आइडेंटिटी, यानी कि अपने राष्ट्र का एक पहचान बनाने के लिए. हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है. बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चंगेज खान के बारे में बताना है. लेट्स चेक आउट द आंसर. द आंसर इज फर्स्ट पॉइंट, फॉर द मंगोल्स चंगेज खान वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम. He united the Mongol people, freed them from interminable tribal wars and Chinese exploitation. Second point, he brought them prosperity, fashion, a grand transcontinental empire, and restored trade routes and markets that attracted distant travelers. Third point, although the Mongol Khans themselves belonged to a variety of different faiths, Shaman, Buddhist, Christian, and eventually Islam, they never let their personal beliefs dictate public policy. Next point, the Mongol rulers recruited administrators and armed contingents from people of all ethnic groups and religion. Next point, the historians are only now studying the ways in which the Mongols provided ideological models for later regimes like the Mughals of India to follow. Sixth point, the nature of the documentation on the Mongols and any nomadic regime makes it virtually impossible to understand the inspiration that led to the confederation of fragmented groups of people in the pursuit of an ambition to create an empire. Seventh point, at the end of the 14th century, Timur, another monarch who aspired to universal dominion, hesitated to declare himself monarch because he was not of Genghis Khanid descent. 8th point, today, after decades of Soviet control, the country of Mongolia is recreating its identity as an independent nation. 9th point, it has seized upon Genghis Khan as a great national hero who is publicly venerated and whose achievements are recounted with pride. At a crucial juncture in the history of Mongolia, Genghis Khan has once again appeared as an iconic figure for the Mongol people, mobilizing memories of a great past in the forging of national identity that can carry the nation into the future. With this, आपका आंसर कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 28 में हमें जो इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन मिला है उस क्वेश्चन को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं. द क्वेश्चन इज, मेंशन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैक्ट्स रिगार्डिंग द कोड ऑफ लॉ अंडर चंगेज खान. चंगेज खान के द्वारा दिया गया जो कोड ऑफ लॉ था इस कोड ऑफ लॉ के कुछ फैक्ट्स के बारे में हमें बताना है. लेट्स चेक आउट द आंसर. The answer is, following the research of David Aylon, recent work on the Yasa, the code of law that Genghis Khan was supposed to have promulgated at the Kuriltai of 1206, has elaborated on the complex ways in which the memory of the great Khan was fashioned by his successors. In its earliest formulation, the term was written as yasak, which meant law, decree, or order. Indeed, the few details that we possess about the yasak concern administrative regulation, the organization of the Hun, the army, and the postal system. By the middle of the 13th century, however, the Mongols had started using the related term Yasa in a more general sense to mean the legal code of Genghis Khan. We may be able to understand
the changes in the meaning of the term if we take a look at some of the other developments that occurred at the same time. By the middle of the 13th century, the Mongols had emerged as a unified people and just created the largest empire the world had ever seen. They ruled over a very sophisticated urban society. So again मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये सारे ही आंसर बुकिश लैंग्वेज में लिखा गया है. सो आपको इन सारे आंसर्स को अच्छे से रीड करना है, समझना है एंड फिर उसके बाद अपने वर्ड्स में आंसर्स को लिखना है. सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी इज क्वेश्चन नंबर 29 जो कि आपके 6 चैप्टर से पूछा गया है, द 3 ऑर्डर्स. सो द क्वेश्चन इज which was the first order of medieval Western Europe, discuss its role in the Catholic Church. So medieval Western Europe में first order में किनको प्लेस किया गया था and Catholic Church में उनका क्या रोल था. So let's check out the answer. So the answer is the clergy was the first order of medieval Western Europe. It included the Pope, bishops and clerics. They enjoyed a significant place in the Catholic Church. The Pope was the head of the Western Church. He lived in Rome. The bishops and the clerics used to guide the Christian in Europe. Most of the villages had their own churches. Every Sunday, people assembled in the church to listen to the sermon by the priest and to pray together. The church had its own rules. According to these rules, every person could not become a priest. Serf, physically disabled, and women could not become priests. Men who become priests could not marry. In the religious field, the bishops were the nobles. The bishops also had vast state like the lords. They lived in splendid palaces. The church had the right to take 1/10 of the total production from the peasant. It was known as tithe. Another source of income of the church was the endowments made by the rich for their own welfare and welfare of their deceased relatives in the afterlife. So with this, इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है. Now क्वेश्चन नंबर 29 में आपको जो इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन मिला है वो भी सेम चैप्टर से ही पूछा गया है, चैप्टर नंबर 6, द 3 ऑर्डर्स. So the question is, describe the classes that existed in European society during feudalism. Which new classes emerged during the later years of the medieval age and why? यानी कि फ्यूडलिज्म के टाइम पीरियड के दौरान यूरोपियन सोसाइटी में कौन से क्लासेस एग्जिस्ट करते थे एंड मेडाइवल एज के लेटर ईयर्स में यानी कि लास्ट के कुछ सालों में कौन सा न्यू क्लासेस का इमर्जेंस होता है एंड क्यों होता है. सो लेट्स चेक आउट द आंसर. सो द आंसर इज देयर वे 2 classes of social organization, the ruling class and the ruled class under the feudal system. The ruling class consisted of big feudal lords who had been given land by the king. They had distributed this land among knights. So the feudal lords and the knights were included in the ruling class. Peasants and slave peasants fell into the category of the ruled class. The slave peasants worked on land and the feudal class spent their earning on the luxurious way of life and mutual battles. No attention was paid to the welfare of the hard-working peasants. Now the new class, so the trade flourished during the later years of the medieval age. Consequently, a new class of traders developed. This class developed due to the following reason. So the first point, demand for luxurious goods increased in Europe because of the crusade. So many people began to trade in these goods. It greatly developed the traders class. And the second point is, peasants began to exchange agricultural goods for non-agricultural goods due to the development of agriculture. It also encouraged the development of the traders class. So with this, इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट होता है. So now let's move to our next question. Now your next question from section number C is question number 30 जो कि आपके 10th chapter से पूछा गया है, displacing indigenous people. So the question is, what was the Great Australian Silence and how did it help to revive culture and tradition of the natives of Australia? So the Great Australian Silence क्या था और इसने किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले नेटिव पीपल के कल्चर एंड ट्रेडिशन को रिवाइव करने में हेल्प किया. सो लेट्स चेक आउट द आंसर. So the answer is, the Great Australian Silence was a lecture delivered by an anthropologist W.E.H. Steiner in 1968 century. This was the silence of historians about the aborigines, the native people of Australia. It electrified people. From the 1970s, there was an eagerness to understand natives. The natives were not seen as anthropological curiosities but were seen as communities with distinct culture and unique ways of understanding climate and nature. Now they were to be considered as such a community that had great bodies of stories, textile and painting and carving skill. These bodies of theirs should be understood, recorded and respected. Later, Henry Reynolds in his book Why Weren't We Told condemned the
practice of writing Australian history as though it had started with the advent of Captain Cook in Australia. Next हमें बता रखा है the study of native cultures of Australia. So after that, special departments were created in universities to study the culture of natives in Australia. Galleries of native art have been included in art galleries. Natives also started to write their own life histories. It was a wonderful effort. From 1974 century onwards, Australian has adopted the policy of multiculturalism. This policy gave equal respect to all cultures, including the cultures of natives. So इस आंसर को मैंने चैप्टर में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है. So आपके 10th चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है द विंड्स ऑफ चेंज, so उस टॉपिक में इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है. So अगर आप इस आंसर को अच्छे से समझना चाहते हैं, then please watch the explanation video of the chapter. Now आपके क्वेश्चन नंबर 30 में इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है वो है How would you interpret the expansion of the USA? Also discuss the development of agriculture in the USA. So किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक्सपेंशन होता है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किस तरीके से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है. So let's check out the answer. So the answer is expansion of the USA. So the USA and Canada came into being towards the end of the 18th century. They occupied only a fraction of land. The imperial power of that time stabilized 13 colonies on its eastern coast with an objective to gain her independence from Britain. In 1776, they declared a war against Britain. This war continued till 1783 and came to an half with the defeat of Britain. In this way, independence of the United States of America came into being. The USA took long time to reach the present boundaries. America started expansion towards the west. To reach its present boundary, the southern region was owned from Mexico. This southern expansion of America resulted in the displacement of the natives time and again. In 1803, President Thomas Jefferson purchased the territory of Louisiana from the French government for $15 million. The Louisiana purchase stretched from the Mississippi River to the Rocky Mountains and from Canada to New Orleans, and it doubled the size of the United States. In 1892, America reached its present strength. Now next हमें agricultural development के बारे में बता रखा है. So the Europeans in America had purchased large size of land holdings. They cleared forest and brought more land under cultivation. They produced crops like rice and cotton. These crops were sold in European market to earn more profit. To protect the crops from the dangers of wild predators, they hunted on large scale. The invention of barbed wire proved to be a milestone in the development of agriculture in America. So with this इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट होता है. सो विद दिस हमने आपके सेक्शन सी के सारे ही लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया विद देयर सॉल्यूशन. सो अगेन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर अपने वर्ड्स में ही लिखना है. आप लोगों को इन सारे आंसर्स को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, अच्छे से समझना है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एंड इंपॉर्टेंट डेट्स को लर्न करना है और फिर इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने वर्ड्स में लिखना है. सो नाउ लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन डी. सो सेक्शन डी में आप लोगों से बेसिकली सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया है. सो टोटल आप लोगों से 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है. सो आप लोगों का पहला सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. सो आपको इस पैसेज को रीड करना है एंड फिर इस पैसेज के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर को देना है. सो आप वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को पढ़ सकते हैं. सो ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों के सेकंड चैप्टर से पूछा गया है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ. सो पेज नंबर 39 में आपको ये पैसेज मिल जाएगा. सो अगर आप इस पैसेज को अच्छे से समझना चाहते हैं देन मैंने सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो भी बनाया है. सो आप डायरेक्टली आई बटन को क्लिक करके चैप्टर नंबर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है सो उन सारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चंस के आंसर्स को भी जान सकते हैं. सो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. सो पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मटेरियल वाज यूज्ड टू मेक सील्स. सो सील्स को बनाने के लिए किस तरीके का मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था. सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा कि सील्स बेसिकली स्टोन से बनाया जाता था. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट विद द वेरियस टाइप्स ऑफ सील्स. सो कितने अलग अलग तरीके के सील्स हुआ करते थे.
सो इसका आंसर आपको अपने सेकेंड लाइन में मिल जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन है हु कर्व दिस सील्स एंड राइट अ फ्यू फीचर्स ऑफ दिस सील्स व्हिच इज मेसोपोटामियन सील्स। सो इन सारे सील्स को, इन सारे मुहरों को कौन कर्व किया करता था? सो इसका आंसर आपको थर्ड लाइन में मिल जाएगा और साथ ही आपको मेसोपोटामियन सील्स के कुछ फीचर्स के बारे में भी बताना है। सो अगर आप लोगों ने चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ा है देन मेसोपोटामिया के सील्स के फीचर्स के बारे में भी आप लोगों को पता होगा। सो अब हम आंसर्स को थोड़ा अच्छे से चेक करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सील्स वेर मेड ऑफ स्टोन्स. It is evident from the fact that until the end of the first millennium BCE, cylindrical stone seals were prevalent in the society. Second question का आंसर है there were two types of seals. This were first is stamp seals and second is cylindrical seal. And third question का आंसर है these seals were carved by skilled craftsmen and its features are first is artistically the carving of the seals were of excellent quality. Second point, engraving of the seals depict the scene of everyday life. And the third point, the inscribed sign describes the authenticity of the seal. So now let's move to your second source based question. So आपका next source based question है question number 32. सो ये क्वेश्चन आपके 11 चैप्टर से पूछा गया है पास्ट टू मॉडर्नाइजेशन। सो पेज नंबर 240 में आपको ये पैसेज मिल जाएगा। सो वीडियो को पॉज करके आप पैसेज को पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ लाइफ स्केच ऑफ फुकुजावा युकेची टिल 1860 एडी। सो फुकुजावा युकेची के हमें अर्ली लाइफ के बारे में बताना है 1860 एडी के टाइम पीरियड तक। सो इस क्वेश्चन के आंसर आपको स्टार्टिंग के 2 लाइन में मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है नेम 2 इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एसोसिएटेड विथ हिम। सो हमें 2 इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना है जो कि इनसे रिलेटेड था। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने 4th लाइन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इन विच ऑफ हिज बुक ही क्रिटिसाइज द जापानीज नॉलेज एंड इन विच वर्ड्स। सो उन्होंने अपने किस बुक में जापानीज नॉलेज को क्रिटिसाइज किया है और किस वर्ड में किया है। सो इसका आंसर आपको अपने 5th लाइन में मिल जाएगा। सो अब हम आंसर्स को अच्छे से चेक करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है फुकुजावा युकिची वाज बोर्न इन अ समुराई फैमिली. ही स्टडीड इन नागासाकी एंड ओसाका. ही लर्न डच एंड वेस्टर्न साइंस एंड लेटर ऑन इंग्लिश एज वेल. In 1860, he went as a translator for the first Japanese embassy in the USA. This proved a lot of material for a book on the West to be written. Second question का आंसर है Kyo University and Mirokusha, a society to promote Western learning. And third question का आंसर है in his book The Encroachment to Learning, he was very critical of Japanese knowledge. He wrote that all that Japan has to be proud of is its scenery. So now let's move to your next source based question. So आपका third and last source based question है question number 33. So ये source based question basically आप लोगों के 3rd चैप्टर से पूछा गया है an empire across 3 continent. So ये पैसेज आप लोगों को अपने पेज नंबर 60 में मिल जाएगा. So आप वीडियो को पॉज करके पैसेज को पढ़ सकते हैं. हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. So पहला क्वेश्चन है हाउ डू यू डिफरेंशिएट द रोमन एम्पायर फ्रॉम ईरान. सो आप रोमन एम्पायर को ईरानियन एम्पायर से किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्टार्टिंग के 2 लाइन में मिल जाएगा. सेकंड क्वेश्चन इज नेम 2 डायनेस्टीज हु रूल्ड ओवर ईरान ड्यूरिंग दिस पीरियड. सो ऐसे कौन से 2 डायनेस्टीज थे जिन्होंने ईरान को रूल किया था इस टाइम पीरियड के दौरान. सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने सेकंड लाइन में मिल जाएगा द पार्थियन एंड लेटर द शशानियन डायनेस्टी. एंड थर्ड क्वेश्चन है व्हिच एम्पायर was bound together by a common system of government and why. So वो कौन सा एम्पायर था जो कि एक कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा बाउंड था यानी कि बंधा हुआ था और किस लिए. सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने 4th लाइन में मिल जाएगा. सो अब हम आंसर्स को अच्छे से चेक करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द रोमन एम्पायर वाज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईरान ऑन द ग्राउंड ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज. सेकंड क्वेश्चन का आंसर है These dynasties were the Parthian and the Sasanian dynasty. And third question का आंसर है Roman Empire was bound together by a common system of government as compared to Iranian Empire. In Roman Empire, common people subjected to one ruler. So with this आपके सारे source based questions complete होते हैं. So now let's move to your next section, section E. So section E में basically आप लोगों से map based question पूछा गया है. So क्वेश्चन नंबर 34 में आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछा गया है.
सो पहला क्वेश्चन है, ऑन द गिवन मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया लोकेट एंड लेबल द गिवन प्लेसेस। सो ऑस्ट्रेलिया के मैप में आपको इन सारे प्लेसेस को लोकेट करना है। सो पहला है पर्थ, दूसरा है कैनबरा, तीसरा है डरबिन। सो अगर आपको नहीं पता है कि डरबिन कहाँ पे है, देन उसके जगह पे आप मेलबर्न को भी मार्क कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सी में आपको एक इंटरनल चॉइस मिला है, आप दोनों में से किसी भी एक प्लेस को मार्क कर सकते हैं। सो अब हम ऑस्ट्रेलिया के मैप में इन सारे प्लेसेस को लोकेट करते हैं। सो दिस इज द मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो पहला लोकेशन था पर्थ। सो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड में आपको यहाँ पे जो जगह दिख रहा है यही है पर्थ। सेकंड था कैनबरा। सो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में ये जो आपको रीजन दिख रहा है ये है कैनबरा। थर्ड है डार्विन। सो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थन साइड में ये जो रीजन है ये है डार्विन। एंड लास्ट है मेलबर्न। सो ऑस्ट्रेलिया के सदर्न साइड में आपको यहाँ पे जो रीजन दिख रहा है ये है मेलबर्न। सो विद दिस हमने आपके क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। सो क्वेश्चन नंबर 34 में आप लोगों से जो सेकंड मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके सिलेबस में नहीं है। सो ये मैप बेसिकली आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम। सो ये चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, बट फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज, ऑन द गिवन मैप ऑफ अफ्रीका 3 प्लेसेस हैव बीन मार्क्ड एज ए एंड बी। सो यहाँ पे क्वेश्चन भी गलत लिखा हुआ है। सो इस मैप में सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेसेस को मार्क किया गया है, ए एंड बी। सो आपको सिंपली बताना है कि ए एंड बी कौन सा प्लेस है, कौन सा रीजन है अफ्रीका का। सो ए हो जाएगा स्वीडन एंड दूसरा हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सो विद दिस हमने आपके हिस्ट्री के लेटेस्ट सैंपल पेपर के सारे ही क्वेश्चंस को अलॉन्ग विद द आंसर्स को डिस्कस कर लिया। सो वीडियो को एंड करने से पहले अगर मैं आपको कुछ टिप्स दूं कि आपको किस तरीके से अपने हिस्ट्री के सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करना है, सो सबसे पहले आप लोगों को सेक्शन ए को सॉल्व करना है। सो सेक्शन ए में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको सबसे पहले लिख लेना है। चाहे आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसके लिए आप प्लेस छोड़ दो एंड बाद में अगर याद आता है देन आप लिख सकते हो। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम लोग एक बार क्वेश्चन आंसर को लिखना स्टार्ट कर देते हैं देन बाद में हमारे पास टाइम नहीं बचता है कि हम फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। एंड जो क्वेश्चन के आंसर हमें आता है एंड उसको अगर हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं देन बाद में बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस होता है। सो इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को सेक्शन ए को अटेम्प्ट करना है, सारे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लोगों को लिख लेना है एंड बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से लिखना है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपको सबसे पहले कौन से सेक्शन को अटेम्प्ट करना चाहिए, सेक्शन बी, सी, डी या फिर ई। सो ई तो बेसिकली मैप वर्क है, ये तो आप सबसे लास्ट में भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट बेसिकली आप लोगों को ये चेक करना है कि किस सेक्शन के ज्यादातर क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छी तरीके से आता है। सो जिस सेक्शन में ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लोगों को अच्छी तरीके से आता है, आप जल्दी जल्दी लिख सकते हो। सो सबसे पहले उसी सेक्शन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सो अगर कोई स्टूडेंट्स ये सोचता है कि सबसे पहले मैं सेक्शन सी को कंप्लीट कर लेता हूं जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछा गया है क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स उसी सेक्शन में है। सो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जिन लोगों को अच्छे से आंसर नहीं आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से नहीं आता है एंड सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए वो उस सेक्शन को पहले कंप्लीट करना चाहता है, देन आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग कोई भी आंसर को सोच सोच के लिखते हैं देन उसमें टाइम लगता है। सो इससे क्या होगा, वो लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को लिखते लिखते ही आप लोगों का पूरा टाइम चला जाएगा। सो इसीलिए सबसे पहले जो सेक्शन के आंसर को अच्छे से आता है आप लोगों को, जिसको आप लोग फटाक से लिख सकते हो, सो सबसे पहले उसी सेक्शन को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है एंड उसके बाद फिर आपको जैसे जैसे आपको आंसर आता है वैसे वैसे अलग अलग सेक्शन को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। साथ ही ट्राई कीजिएगा कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आप लोगों से कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या फिर रीजंस पूछा गया है, तो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लोगों को पॉइंट में लिखना है। सो पॉइंट में लिखने से कॉपी बहुत ही नीट एंड क्लीन भी लगता है। साथ ही साथ जो भी टीचर आप लोगों के आंसर कॉपी को चेक करेगा वो भी बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज पढ़ सकता है आंसर्स को। साथ ही साथ मेन पॉइंट्स को आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग स्टार्टिंग से ही अपना जो स्पीड है हैंड राइटिंग का उसको तेज ही रखिएगा ताकि टाइम में आप लोगों का पेपर कंप्लीट हो जाए एंड लास्ट का 10 मिनट आप लोग बचा के रखिएगा ताकि लास्ट के 10 मिनट्स में आप अपने पेपर को रिवाइज कर सको। एंड और एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप लोगों को सारे ही क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। सो कई बार क्या होता है कि हम लोग टेंशन के मारे क्वेश्चंस को ही अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। सो इसीलिए सारे ही क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार रीड करना है। सो बेसिकली आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला सेक्शन है, सो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ रहता है और हम लोग नॉट को देखते ही नहीं है। सो इसीलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ना है एंड फिर आंसर्स को लिखना है। सो आई होप
कि आपको ये सारे टिप्स बहुत ज्यादा अच्छे लगे होंगे एंड अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करेंगे देन आपका एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। सो वीडियो अगर अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप अपने क्लासमेट के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी हिस्ट्री के लेटेस्ट सैंपल पेपर के बारे में पता चले। साथ ही साथ प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहना चाहते हैं एंड प्लीज कमेंट मी डाउन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।